مگر جلسہ جلوس علماء مساجد مدارس سب کچھ موجود ہے، مگر ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے خادم و غلام بن چکے ہیں۔ نتیجے میں کیا نکلا؟ ایمانی برکتیں ہمارے گھروں سے چلی گئی۔ مسلمان ساری دنیا میں مارا کاٹا اور بدنام ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل قوم آج ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں، ہم ایسا نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نور پہ بہت سارے خطبہ شورا علماء بیٹھے ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ہماری تبلیغ کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری دنیاوی و اخروی بھلائی کے لیے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے مسجد میں 5-10 ہزار روپیہ لے کر بھی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، خطاب کے ساتھ ساتھ، تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قوم کا ہر بچہ ان کی دنیا بن جائے، ان کی آخرت بھی تباہی سے بچ جائے۔ جلسہ آپ نے بڑا اچھا سجایا، کہیں سے کوئی کمی سمجھ میں نہیں آئی۔ کاش میری گفتگو کچھ دیر پہلے آپ نے کرائی ہوتی تو شاید آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے میں سوچنے پر مجبور کرتا کہ یقیناً ہم مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیغمبر کے فرمان کو توڑا اور نچوڑا ہے۔ ہم نے اپنے نبی کے قانون کو گھر سے نکالا ہے۔ ہماری بچیوں نے غیروں کی بچیوں کی زندگی کو دیکھ کر ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال کر اپنے ایمان اور معاشرے کو تباہ کیا ہے۔ ہم مسلمانوں میں آج کیا رہ گیا ہے؟ صرف سادہ کلمہ بچا ہوا ہے۔ اس کلمے میں حسن جن چیزوں سے ہونا چاہیے تھا وہ آج ہمارے ہاں ہے نہیں۔ غوث اعظم کا نعرہ لگانا اور جلسہ و جلوس کرنا بڑا آسان کام ہے۔ غوث پاک کا ڈیک چڑھانا، کھچڑا اور ملیدہ بنانا، محفل میں مصوی رضا مصباحی کو بلانا بہت آسان کام ہے، مگر غوث اعظم کی زندگی پر بچوں کو غور کر کے اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا بہت مشکل کام ہے۔ غوث اعظم کے کردار پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی میں صرف کرامتیں نہیں تھی۔ علامہ مستفیض الرحمان صاحب سے بڑی اچھی تقریر آپ نے سرکار غوث اعظم پہ سماعت کی ہے۔ میرے پاس وقت کی کافی کمی ہے، میں چاہوں گا کہ اس بچے کھچے ٹائم کو زیادہ تر کسی نہ کسی نقطے نظر سے اصلاحی پہلو کو اختیار کر کے آپ تک چند پیغامات پہنچا دوں۔ سرکار غوث پاک کی زندگی کا کچھ حصہ جہاں تک میری سمجھ میں آئے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ غوث پاک کی زندگی میں کرامتیں بعد میں ہم سنیں۔ سرکار غوث پاک کے بچپنے سے آپ کی عمر کے آخری حصے تک کی زندگی کا اگر سرسری طور پہ جائزہ لیا جائے تو غوث اعظم صرف صاحب کرامت ولی کا نام نہیں، ایک زبردست عالم دین کا نام سرکار غوث اعظم ہے۔ سرکار غوث اعظم صرف صاحب کرامت ولی کا نام نہیں بلکہ صاحب تقریر ایک عالم دین کا بھی نام ہے۔ آج ہماری مسجدوں کو امام اگر تقریر کرے تو ان کی عزت میری نگاہوں میں بالکل نہیں۔ ہمارے کوئی خطیب باہر سے آ جائے ان کو ہم صرف مولوی سمجھتے ہیں، مگر مولوی یہی سب سے بڑے ولی بھی ہوتے ہیں۔ پیران پیر جو سب سے بڑے پیر ہیں ہمارے غوث اعظم، وہ ایک عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے، مگر ہم نے اپنے سماج کو کس طریقے سے آج اتنا گندا کیا ہے۔ آپ کے ہاں کا ماحول کیا ہے مجھے نہیں پتا، مگر چلے جائیے آپ کلکتہ میں، چلے جائیے آپ بنگلور میں، دیکھ لیجئے آپ ممبئی میں، بڑے بڑے کیپٹل سٹیز میں آپ مطالعہ کیجئے، وہاں پتا چلے گا جس کے ہاتھ میں 5 انگلی میں 5 انگوٹھیاں ہوگی وہی سب سے بڑا پیر کہا جاتا ہے۔ ایک ایک ہاتھ داڑھی جن کی ہو وہی سب سے بڑا پیر کہا جاتا ہے۔ جن کو جو جبہ پہن کے کئی مہینے سے جو نہایا نہیں، جن کو کلہ کیے ہوئے ابھی 1 مہینے سے اوپر ہو گئے، جن کے دانت گندے، کپڑے گندے، چہرہ گندا، جو کئی سال سے نماز نہیں پڑھا ہے، بس داڑھی بڑھ گئی، ٹوپی لگ گئی، جبہ سج گیا، اب عصا لیا ہے، سماج میں گھسا ہے، پیر صاحب بن کر گھوم رہا ہے۔ یہ وہ پیر نہیں، یہ اللہ کے ولی بعد میں ہوں گے۔ اللہ کے ولی سب سے بڑے کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کی مسجدوں میں 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ جو آپ کے مکتب میں آپ کے بچوں کو علی باتا پڑھاتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہے۔ سرکار امام شافعی فرماتے ہیں ایک عالم اگر اللہ کا ولی نہ ہو تو روئے زمین پر کوئی اللہ کا ولی نہ ہوگا۔ ولی ہونے کے لیے علم کا ہونا، ولی ہونے کے لیے شریعت پہ عمل کرنے والا ہونا یہ شرط ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو اجمیر میں فجر پڑھتا ہوں،
बगदाद में जोहर पढ़ता हूँ, मगरिब और ईशा मदीने में पढ़ता हूँ, ऐसा कहने वाला कोई हो तो उनकी विलायत मशकूक इस जमाने में मानी जाएगी। जो हमारी निगाहों के सामने नमाज पढ़ेंगे उनके लिए हम उनके लिए इज्जत के दस्तरखान बिछाए। जो हमारे सामने शरीयत पे अमल करके दूसरों को शरीयत पे अमल करने का पैगाम देंगे वो सबसे बड़े वली है। मेरी बात तवील न हो जाए, मैं गौसे पाक के हवाले से आप तक बताना चाह रहा हूँ। सरकार गौसे पाक कोई मामूली शख्सियत नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जिंदगी भर मुर्दों को जिंदा फरमाया है। ये कौन वली है? ये वही है जिस एक नौजवान जो रास्ते से गुजर रहा है, दिन में पूरा दिन भूख और प्यास की शिद्दत जब गालिब आई, शाम के वक्त एक नौजवान दरख्त के किनारे बैठा है, भूख का एहसास हुआ, बहता पानी में एक सेब देखता है, ख्वाहिश हुई, भूख की शिद्दत गालिब है, सेब सामने है, आपने उठाया, सेब खा लिया, पानी पी लिया। थोड़ी देर के बाद नमाज मगरिब का वक्त हुआ, जैसे ही अल्लाहु अकबर कहते हुए मगरिब की नमाज की नीयत बांधा है नौजवान, दिल में एहसास पैदा हुआ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मगर मैंने बगैर इजाजत एक सेब क्यों खा लिया। जरा वो मुसलमान गौर से सुने जो आज किसी का सामान हो हड़प लेना आसान समझते हैं, वो ये समझते कि माल आना चाहिए चाहे जिस रास्ते से आए, पैसा आना चाहिए चाहे जिस रास्ते से आए, दौलत बैंक में जमा हो जाए चाहे जिस रास्ते से हो, करोड़पति में मेरी गिनती हो जाए। उन नौजवानों को गौर करना चाहिए, अगर उनके पास रित्ती भर भी ईमान की खुशबू बची है तो उनको याद रखना चाहिए कि अगर इस दुनिया में बच गया है तो बच गया है, कल मैदान क़यामत में अल्लाह उस इंसान को जिसने किसी एक आदमी का कोई छोटा भी सामान बगैर इजाजत अगर हड़पा है, चोरी किया है, ठगी किया है, बेईमानी किया है, किसी तरीके से ले लिया है और खा लिया है, उन हराम खोरों को गौर करना चाहिए। उनको उनकी हराम खोरी की वजह से कल मैदान क़यामत में अल्लाह उस इंसान को जलील करेगा, चाहे वो 50 साल से गौसे आजम का नारा लगाता हो, चाहे वो 50,000 साल तक नमाज पढ़ा हो, मगर हराम खोरी का बदला उसे कल चुकाना पड़ेगा। उसको उसकी हराम खोरी के बदले पनिशमेंट मिल ही जाएगा। वो नौजवान जो यहाँ हराम खोरी करता है हमारे समाज में, आज आप देखिए आदमी दलाली के नाम पे, दलाली का एक ऐसा मुहावरा, एक ऐसा जुमला आम हो गया है, मालूम पड़ता है कोई आईएएस ऑफिसर की बात हो रही है, कोई बोलता है कि आप कौन सा काम करते हैं मौलाना साहब, तो कहते हैं मौलाना साहब पूछते किसी को कौन सा काम है, बोला मैं दलाली करता हूँ। किस चीज की दलाली? तो कोई बोलता मैं जमीन खरीदता बेचता हूँ, मैं दुकान का सामान इधर से उधर करता हूँ। यानी दलाली करने वाला भी बोलता है कि मैं काम करता हूँ, जबकि सिरे से उनको मालूम होना चाहिए कि मजहब इस्लाम में 1 रुपया भी अगर किसी ने किसी का हराम का ले लिया है तो कल मैदान क़यामत में उस 1 रुपया के बदले उसको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सामने वो जलील होगा, अल्लाह पूछेगा कि बंदा वो 1 रुपया जो तूने किसी इंसान का, चाहे वो इंसान हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई हो दुनिया में रहने वाला, किसी का कोई माल हम ठगेंगे, कल मैदान क़यामत में इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। वो नौजवान है, नमाज में खड़ा है, दिल में ख्याल आया कि मैं तो सेब खा लिया हूँ, आज नमाज की वो रूह कहाँ चली गई? अब मैं उस तरीके से नमाज क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ जिस तरीके से नमाज में रूह हमें पहले मिला करती थी? नमाज की रूह मेरे दिल से क्यों जा रही है? नमाज खत्म होने के फौरन बाद एहसास पैदा हुआ, यहाँ तक कि आज मैं आपसे कहूँ कि सेब के बदले में आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, क्यों सेब खाया? तो हम और आप हंसी और मजाक तो उड़ा देंगे, मौलाना साहब छोड़ दीजिए ना, सेब ही तो खाया है, कोई हाथ काट के आपका थोड़ी ना खाया है। यानी आज हमारे सामने ये मामूली सी गलती है, मगर जो इंसान नेक होता है, जिनको दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र होती है, जो इंसान मरने के बाद के हालात की गर्मी और शिद्दत को देख के तड़पना जानता और महसूस करता है, वो इंसान समझता है कि यहाँ बच जाएंगे, कल मैदान क़यामत में अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अब नमाज से फारिग होने के बाद सोचता है मैंने तो सेब खाया है, ये सेब आखिर किसका था? पता लगाया, बहुत मशहूर वाकया है, वाकया निगारी मेरा मकसद नहीं है, ना मैं कभी वाकया के तनाजुर में मैं बातें करना सीख जानता हूँ और ना मैं मेरी दिलचस्पी ऐसी है, मगर वाकया बताकर 2-4 इस्लाही बातें आप तक पहुंचा दूं। वो नौजवान उल्टी राह वो चल दिया है, पता लगाने के लिए कि सेब कहाँ का हो सकता है, किसका हो सकता है। पता लगाते लगाते बहुत दूर पता चला कि एक दरिया के किनारे एक सेब का दरख्त है। उनको अंदाजा हो गया कि इसी दरख्त का ये सेब होगा। पता लगाया कि इसका मालिक कौन है, इसका मालिक कौन है, किसके अंडर में ये बागीचा है। जब पता लगा उसके मालिक के पास गया, कहा कि जनाब मैंने आपका सेब बगैर इजाजत बहता हुआ सेब मैंने एक खा लिया है,
आप मेरी गलती माफ फरमा दीजिए। उसने वो समझ गया कि नौजवान कोई मामूली नहीं हो सकता है, जो एक सेब को खा लेना, बहते हुए पानी से उठाकर खा लेना आम हालात में भी आम बात है, मगर वो शख्स बागीचा वाला समझ गया कि जो इतनी छोटी सी गलती की माफी चाहता है वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता, जरूर वो अल्लाह का नेक बंदा होगा। जिनके दिल में अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा वक्त के एतबार से हो, वही ऐसी ख्वाहिश करेगा कि मेरी हर गलती दूसरे शख्स माफ कर दे, ताकि मरने के बाद अल्लाह के सामने जब मेरी पेशी हो तो वहां साफ शफाफ कैरेक्टर के साथ मैं पेश हो जाऊं। इस हैसियत से उसने माफी मांगी। नौजवान खड़ा है, बागीचे का मालिक कहता है मैं तेरी गलती तब माफ करूंगा जब तुझे 12 साल की मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ेगी। 12 साल की नौकरी अगर करना मेरे बागीचे में मंजूर करते हो तो मैं तेरी गलती माफ करूंगा। कहा ठीक है, 12 साल में खिदमत को तैयार हो। 12 साल तक नौजवान उसी गार्डन में काम करता रहा, आबपाशी करता रहा, निगाहदाश्त करता रहा। 12 साल का पीरियड जब कंप्लीट हो गया, अब वो फिर अपनी गुजारिश लेकर उस मालिक के पास पहुंचा कि सरकार देखिए 12 साल हो गए मैं आपके बागीचे में खिदमत कर रहा हूं, मैं जब पानी की जरूरत थी तब दिया, जब सेब तोड़ने और काटने की जरूरत थी तब मैंने किया, जिस तरीके से आपने रहने और खिदमत का हुक्म दिया था मैंने सारा काम बेआईनी ही उसी अंदाज से किया। अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, मेरी गलती माफ कर दीजिए। नौजवान खड़ा है, अपनी गुजारिश रख रहा है, मगर सामने वाला शख्स बागीचा का मालिक कहता है मैं आसानी से तेरी गलती माफ नहीं करूंगा, आखिरी शर्त यह है कि मेरे घर में एक बेटी पल रही है जो आदतन बहुत खराब है, जिनकी आंख भी जिनके पास उनकी आंख भी सलामत नहीं है, हाथ की भी लूली है, पांव की लंगड़ी है, समझ की नहीं है। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तेरी गलती माफ कर दूं तो वो नौजवान को कहता है कि तुझे पहले मेरी उस बेटी से जो लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, उससे तुझे शादी करनी होगी। वो नौजवान अगर आज का नौजवान होता, हम अगर उनसे कहते, हमारे मुफ्ती साहब किबला कहते कि तुम्हारी गलती तब माफ की जाएगी जब तुम ऐसी अंधी लड़की से शादी करोगे। नौजवान तड़प के बोलता ए मौलाना साहब, अपना मशवरा और अपनी माफी अपने पॉकेट में रखिए, भागिए यहाँ से। एक सेब क्या खा लिया है, सर पे चढ़ के पेशाब कीजिएगा क्या? यानी आज हमारा कॉन्सेप्ट ये बनेगा, मगर जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो एट एनी हाउ अपनी गलती की माफी की राह हमवार करना चाहता है। नौजवान कहा मुझे ये भी शर्त मंजूर है। नौजवान शादी किया, निकाह के बाद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, चेहरा खोला है दुल्हन का, देखता क्या है, एक हसीना लड़की वहां पे पड़ी है, हाथ भी उनके पास है, पांव भी सलामत है, आंख भी अच्छी है। अब ये देखकर फौरन उल्टे कदम भागा है, उस बुजुर्ग के पास आया है, कहा सर आपने तो कहा था कि वहां एक लंगड़ी लूली लड़की से मैं तेरा निकाह किया हो, मगर वहां हसीना है, वहां जमीला है, वहां खूबसूरत पड़ी है, उसके पास हाथ भी है, पांव भी है, सर भी है, लगता है कि आपसे कोई धोखा हुआ है, मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है, जिससे मेरा निकाह हुआ है वो लड़की वहां पे नहीं है, कोई दूसरी लड़की वहां बैठी है। बुजुर्ग इंसान कहता है लड़का वही लड़की है जिससे मैंने निकाह किया है, वो लंगड़ी इसलिए है कि वो बेटी मेरी अपने पांव से कहीं गलत जगह का सफर नहीं किया है, वो लूली इसलिए है कि अपने हाथ से कोई किसी पर कभी जुल्म नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, अपनी आंखों की अंधी इसलिए वो कही जाती है कि अपनी आंख का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए वो कभी नहीं किया। अब जब इतना सुंदर था वो नौजवान तड़प गया। बुजुर्ग कहता है ए बेटा मैंने देख लिया, एक सेब खाने की वजह से जो आदमी 12 साल की नौकरी और मुलाजमत को मंजूर कर लिया हो, मेरी बेटी जो अंधी मैंने तुझे बताया था, ऐसी लड़की से शादी करने पर जो रजामंद हो गया हो, मैं समझ गया कि वो मामूली इंसान नहीं हो सकता। पता क्या चला है सरकार गौसे पाक उसी दोनों ये तबके के इंसान जो माँ की सूरत में जो इंसान इतनी पाकीज़ा हो, पाकीज़ा फिक्र की हो, अंधी इसलिए हो कि कभी अपनी आंखों का इस्तेमाल गलत जगह के लिए नहीं किया, गलत चीज को अपनी आंखों से नहीं देखा है, ऐसी जिसकी माँ हो और बाप इतना नफीस तबीयत का हो, ऐसी पाकीज़ा शख्सियत का जब आपस में ताल्लुक होता है, उन्हीं ताल्लुकात से जो तीसरा वजूद होता है वो कोई और नहीं, वही सैयदना गौसे पाक की जात होती है, वही बच्चा गौसे आजम पैदा होता है। यानी पहले माँ पाकीज़ा होती है, पहले माँ अच्छी हो जाए फिर बेटा अच्छा होगा, पहले बाप अच्छा हो फिर बेटा अच्छा होगा। बाप अगर चोरी करेगा तो यकीन जाने कि बेटा भी 2-4-5 साल के बाद चोर ही बनेगा, चाहे अभी MBBS की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हो। माँ अगर टीवी में रात दिन लटपट रहती हो तो याद रखे कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी औलाद भी कभी न कभी टीवी के साथ लटपट रहेगी, मोबाइल से लटपट रहेगी उसकी औलाद। मैं कहना चाहूंगा एक स्वच्छ समाज में ये जरूर
जरूरी है कि सबसे पहले बाप अच्छा हो, गार्जियन अच्छा हो, समाज के वो लोग अच्छे हो जिनको देखकर बच्चे सीख जाए। मगर यहाँ होता कहाँ ऐसा है, बेटी अलग मस्ती कर रही है, बेटा अलग मस्ती कर रहा है, माँ अलग टीवी से लगी हुई है, बाप अलग चोरी और शराब से लगा हुआ है। जो समाज में ऐसी गंदगी फैल चुकी हो, वो समाज उम्मीद छोड़ दे कि उसका बेटा हाफिज कुरान बन जाए, वो उम्मीद छोड़ दे कि उसका बेटा आलिम दीन बनेगा, वो उम्मीद छोड़ दे कि उसका बेटा गौसे आजम का दीवाना बनेगा। नहीं बन सकता है गौसे आजम का दीवाना। सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगा दी जाए, सारी जमीन जायदाद बेचकर अगर आप और हम अपने ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे और हम खुद नहीं सीधे राह पे आएंगे, तो हमारा बेटा पढ़ के डॉक्टर तो बनेगा मगर चोर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मगर समाज की खिदमत की उम्मीद उनसे नहीं की जाएगी, क्योंकि हमने अपने बच्चे को तरबियत नहीं दी है। हमारा बच्चा तालीम पा गया है, तरबियत अपनी माँ से नहीं पा सका, अपने बाप से नहीं पा सका, अपने समाज से पा नहीं सका। आज हमारे समाज में टीवी का कल्चर, मोबाइल का कल्चर किस तरीके